आज सारे के सारे डॉक्ट्रिन्स को रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सेक्शन 399 के अंदर ये डॉक्ट्रिन आया है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन any document kept by the register or make a record of the same or get a copy or extract of any document including certificate of incorporation of any company on payment of the prescribed fees. The MOA and AOA of a company when registered with the registrar of company become public document and they are available for inspection to any person on payment of nominal fees. Now by constructive notice, it is meant that whether a person reads the document or not, he is presumed to have knowledge of the contents of the document. He is not only presumed to have read the documents but also understand them in their true perspective. ठीक है, यानी कि उनमें एक्चुअली बोला क्या जा रहा है ये उसको सही से समझ रहा है, ये ऐसा अज्यूम कर लेगा लॉ। एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ MOA एंड AOA, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, बट ऑल्सो ऑफ ऑल द अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सच एज स्पेशल रेजोल्यूशन एक्सेट्रा विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार. This forms the basis for doctrine of ultra vires. Thus, if a person enters into a contract which is beyond the powers of company as defined in the memorandum or outside the authority of director as per memorandum or article, he cannot acquire any right against the company under the contract. Then doctrine of ultra vires, ये मैं जो बैक एक्सरसाइज में आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन 3 का उससे बता रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा बेटर फॉर्म में दिया हुआ है. The meaning of term ultra vires is simply beyond their powers. The legal phrase ultra vires is applicable only to acts done in excess of legal powers of the doers. This presupposes the powers are, यानी कि इधर presumption है, इधर ये assumption है कि power limited है. To an ordinary citizen the law permits whatever does the law not expressly forbid. यानी कि एक आम बंदे को लॉ ने वो सब परमिट करके रखा है जो लॉ ने फोरबिड नहीं किया, जो मना नहीं किया है वो परमिटेड है. It is fundamental rule of company that the objects of company as stated in its memorandum can be departed from only to extent permitted by the act. Thus in far and no further. Ashbury Railway Company Limited versus Rishi. पूरा नाम अलग है, Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Rishi. इधर शॉर्ट में दिया हुआ है. इसका क्या मतलब है कि अगर कंपनी के मेमोरेंडम में सिर्फ लिखा है कि ये बिजनेस कर सकती है, तो क्या वो कंपनीज एक्ट के जो भी रेगुलेशन है उसको कंप्लाई करने के लिए कुछ और काम नहीं कर सकती? कर सकती है. तो एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट. ठीक है. इन कॉन्सिक्वेंस एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर्स नॉट ओनली ऑफ डायरेक्टर्स बट ऑल्सो ऑफ कंपनीज होली वॉइड एंड इन ऑपरेटिव इन लॉ एंड इज देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी. ऑन दिस अकाउंट a company can be restrained from employing its funds for the purposes other than those sanctioned by the memorandum. Likewise, it can be restrained from carrying on any trade different from the one it is authorized to carry on. The impact of doctrine of ultra vires is that company can neither be sued on an ultra vires transaction nor it can sue on it. ना ही कंपनी केस कर सकती है, ना ही कंपनी पर कोई केस कर सकता है. Since the memorandum is a public document, it is open to public inspection. Therefore, when one deals with a company, one is deemed to know about the powers of the company. If in spite of this you enter into a transaction which is ultra vires the company, you cannot enforce it against the company. For example, if you have supplied goods, ये बहुत ज़रूरी है, very very important, इस पर क्वेश्चन बनता है. If you have supplied goods or performed service on such a contract or lent money, you cannot obtain payment or recover the money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, यानी खर्च नहीं किया है, the lender may stop the creditor from parting with it by means of an injunction. Injunction बोले तो stay order. कोर्ट वो बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देगा या जो भी है उसको फ्रीज कर देगा, उसको रोक देगा कंपनी को. This is because the company does not become the owner of the money which is ultra vires to the company. As the lender remains the owner, he can take back the property in specie. In specie मतलब as it is. As it is. इस केस में क्या मतलब है कि जो मनी उसने दिया है जो कंपनी ने अभी तक एक्सपेंड नहीं किया है.
If ultrawire's loan has been utilized in meeting lawful debt of the company, then the lender steps into the shoes of इधर debtor लिखा है, debtor नहीं होना चाहिए, creditor paid off. debtor को थोड़ी पे करते हैं, creditor को pay off करते हैं. Creditor paid off and consequently he would be entitled to recover his loan to the extent from that company. इसका वो एक पॉपुलर वाला क्वेश्चन है कि 5 करोड़ का लोन दिया है एक कंपनी को, 1 करोड़ उसके MOA ने ऑथराइज किया था, ठीक है. इसमें से 3 करोड़ लॉफुल डेट के लिए यूज़ हुआ है और 1 करोड़ अनट्रेसेबल है. तो कितना रिकवर कर पाएगी ये कंपनी? 1 करोड़ तो कर ही पाएगी क्योंकि वो मेमोरेंडम ने अलाउ किया था. 3 करोड़ लॉफुल डेट का है तो वो किसके लिए यूज़ हुआ है? लॉफुल डेट. तो जो लेंडर है इट्स स्टेप्स इनटू द शूज़ ऑफ क्रेडिटर सो पेड ऑफ. तो ये 3 करोड़ भी रिकवर कर लेगी, लेकिन 1 करोड़ अनट्रेसेबल है. एक्चुअली 2 करोड़ अनट्रेसेबल है, उसमें से 1 करोड़ रिकवर हो जाएगा क्योंकि वो मेमोरेंडम ने अलाउ किया है, और 1 करोड़ तुम्हारा बैड डेट हो जाएगा इसमें से. An act which is ultra vires to the company being void cannot be ratified by shareholders of the company. Ultra vires to the company मतलब क्या? मेमोरेंडम के ही बाहर है वो. Sometimes an act which is ultra vire can be regularized by ratifying it subsequently. Ratify का मतलब क्या? अप्रूवल दे देना, बाद में अप्रूवल दे देना. काम कर लिया है, अब तुम बाद में अप्रूवल दे रहे हो. तो मेमोरेंडम से जो बाहर है उसको तो शेयर होल्डर यूनानिमसली सब मिलके भी कर दे तो भी नहीं कर सकते. लेकिन if act is ultra vires to the power of director, shareholder can ratify it. If act is ultra vire to the article, तो तुम the company can alter its article. If the act is within the power of company but it is done irregularly, the shareholder can validate it. यानी कि MOA के अल्ट्रा वायर्स है तो void हो गया, यूनानिमसली भी उसको अप्रूव नहीं कर सकते. अगर डायरेक्टर के अल्ट्रा वायर है तो रेटिफाई किया जा सकता है. अगर आर्टिकल के अल्ट्रा वायर है तो आर्टिकल को अल्टर किया जा सकता है. और अगर एक्ट इंट्रा वायर्स है लेकिन इरेगुलरली किया है तो शेयर होल्डर उसको वैलिडेट कर सकते हैं. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये भी पीछे से आंसर बता रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, द आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी दो आर सपोज टू हैव सेटिस्फाइड देमसेल्व्स रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ कंपनी टू एंटर इनटू the proposed contract are also entitled to assume that as far as the internal compliance of the procedures and regulation by the company is concerned, everything has been done properly. मतलब कि उनको खुद को तो चेक करना ही है कि सारी चीज़ें हुई कि नहीं हुई है, कंपनी के पावर्स में है या नहीं है. लेकिन इसके साथ ये अज्यूम कर सकते हैं आउटसाइडर कि जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स है वो प्रॉपरली हुई है. दे आर बाउंड टू एग्जामिन द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड इंश्योर दैट प्रपोज डीलिंग इज नॉट इनकन्सिस्टेंट विद देम, बट दे आर नॉट बाउंड टू डू मोर. उनको कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है. दे आर फुल्ली एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम रेगुलरिटी एंड कंप्लायंस बाय द कंपनी with the internal procedures as required by the memorandum and articles. The doctrine is a limitation to the doctrine of constructive notice. तो इसका exception है, doctrine of constructive notice का exception है, and popularly known as the rule laid down in the celebrated case of Royal British Bank versus Turquand. Thus the doctrine of indoor management aims to protect outsiders against the company. The above mentioned doctrine of indoor management or Turquand rule has limitations of its own. That is to say, it is inapplicable in the following cases. इन सारे केसेस में जो है वो नेग्लिजेंस हो रहा है या फिर बाद में कुछ फोर्जरी हो रही है, तो इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को बचाता है फ्रॉम चेकिंग द इंटरनल प्रोसीजर्स, बट इट डज नॉट प्रोटेक्ट नेग्लिजेंस. ठीक है. तो पहला है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी. एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. कंस्ट्रक्टिव मतलब कि उसको पता होना चाहिए था, जैसे अगर डायरेक्टर है तो उसको क्या गड़बड़ है कंपनी में ये पता होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है. तो डायरेक्टर कैन नॉट क्लेम इंडोर मैनेजमेंट. द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज़ नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इरेगुलरिटी. इसमें केस लॉ 2 है, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी और मॉरिस वर्सेस कांसिन. दोनों केस में डायरेक्टर थे, डायरेक्टर्स को ये पता होता है और डायरेक्टर प्रेजेंट थे मीटिंग में, जिस कारण से वो इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते थे. फिर सेकेंड है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी. द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली. Where person dealing with companies put out on an inquiry, for example, where the transaction is so unusual or not in ordinary course of business, it is duty of outsider to make necessary inquiry. उसको पूछताछ करना जरूरी है
कि क्या ये बंदे के पास प्रॉपर अथॉरिटी है ही नहीं, है या नहीं. Protection of Turquoise rule is also not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry. Suspicions should arise, for example, from the fact that officer is purporting to act in a manner which is apparently outside the scope of his authority. Purporting मतलब pretending या फिर appearing to act in such a manner which is outside his scope of authority. इसमें case law, where in the case law of Anand Bihari Lal versus Dinshaw and Company, plaintiff accepted the transfer of company's property from its accountant. The transfer was held void. Accountant के पास कहाँ से power आ गई? कोई power of attorney भी नहीं था उसके पास. The plaintiff could not have supposed in absence of power of attorney. Accountant के पास power of attorney भी नहीं था that the accountant had authority to effect the transfer of property. एक और case law क्या है इसमें? Horton and Co versus Northard, Love and Wills, जहाँ पे एक बंदा दो कंपनीज में डायरेक्टर था और उसने एक कंपनी के, जैसे ये ए लिमिटेड, ये बी लिमिटेड, ये है हमारा डायरेक्टर, ये दोनों में डायरेक्टर था. इसने ए लिमिटेड के पैसे से बी का डेट दिया और बी के पैसे से ए का डेट दिया. तो ये इतना सस्पिशियस है कि इधर इंक्वायरी आनी चाहिए थी, नहीं कि जिस कारण से इंडोर मैनेजमेंट ने तुमको प्रोटेक्ट नहीं किया. फिर फोर्जरी. द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू इरेग्युलरिटीज विच माइट अदरवाइज अफेक्ट ए ट्रांजेक्शन बट इट कैन नॉट अप्लाई टू फोर्जरी. इरेग्युलरिटी के अगेंस्ट है पर फोर्जरी के अगेंस्ट नहीं है, नेग्लिजेंस के अगेंस्ट नहीं है. ठीक है. विच मस्ट बी रिगार्डेड एज नलिटी, मतलब ये तो कुछ है ही नहीं ना जो फोर्ज हो गया, कंप्लीट फोर्जरी. फोर्जरी में इन सर्कमस्टेंसेस एक्सक्लूड द टर्कवान रूल. द ओनली इलस्ट्रेशन इज फाउंड इन रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड. इन दिस केस प्लेंटिफ वॉज ट्रांसफरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, यानी शेयर सर्टिफिकेट इसको दिया गया था, इशूड अंडर द सील ऑफ द डिफेंडेंट्स कंपनी. द कंपनी सेक्रेटरी हु हैड अफिक्स्ड द सील of the company and forged his signature of the two director issued the certificate. तो क्योंकि सिग्नेचर फोर्ज्ड था, कंपनी सेक्रेटरी ने पूरा घोटाला किया था, जिस कारण से तुम कंपनी को लायबल कर ही नहीं सकते. द प्लेंटिफ कंटेंट दैट वेदर द सिग्नेचर वॉज जेन्युइन और फोर्ज्ड वॉज अ पार्ट ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट. लेकिन ये तो पूरी फोर्जरी है. इंटरनल मैनेजमेंट किस पे लगता है? इरेग्युलरिटी पे. एंड देयरफॉर द कंपनी शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट. बट इट वॉज हेल्ड दैट द रूल हैज़ नेवर बीन एक्सटेंडेड. The rule has never been extended to cover such complete forgery. थैंक यू. इसी के साथ हमारा डॉक्ट्रिन्स कवर हो जाते हैं.